Student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about what is classification, then kingdom system of classification, in which we have already discussed about two kingdom system of classification was given by Carolus Linnaeus and three system kingdom of classification. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So today we will see five kingdom system of classification. Actually it is very broad kingdom system of classification, so please keep patience and listen it carefully. Let's see what we will see today. About kingdom system, five kingdom system of classification. Monera, that is eubacteria and mycoplasma. We will discuss one by one. Come to main point. See, five kingdom system of classification. It was given by R.S. Whittaker, yani Robert H. Whittaker, 1969, and he described all the living organism in five categories on the basis of their characteristics. So, according to him, organism first of all divided on the basis of prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes he kept all the Monera, and eukaryotes he described Protista. It is further divided into multicellular and unicellular organism. Eukaryote further divided into two main parts: unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism belongs to the phylum Protista, and multicellular organism, that is Animalia, fungi and plantae. So multicellular organism he further divided into two main parts: with cell and without cell. With cell, all of you have aware about phototrophic comes plantae and heterotrophic, that is the fungi. Then without cell, जिसमें सेल वाल नहीं होते हैं, और वो क्या एग्जाम्पल है उसका? एनिमेलिया. एनिमेलिया, दिस इज द फाइलम and its best example all the animals, right? Fungi heterotrophic है because it can't make their own food. Plant जो है phototrophic हैं या autotrophic हैं because they are capable to make their own food. So R.H. Whittaker, 1969, he described the all living organism in five kingdom based on their main characteristic. It was prokaryote, eukaryote, prokaryotes comes Monera, and Monera mostly best example is bacteria, eubacteria and archaebacteria. Protista, that is the protozoa, mycoplasma. Then multicellular organism, मल्टीसेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल वाल हो, और यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल वाल हो, राइट? तो मल्टीसेलुलर इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, एक जो सेल के साथ होंगे और दूसरा जिनमें सेल प्रेजेंट नहीं होगा. तो जो सेल वाल थे उसमें क्या क्या था? प्लांट था और फंगी था, और विदाउट सेल वाल एनिमल्स. सो दीज आर द मेजर कैटेगरी ऑफ डिवीजन ऑफ five kingdom classification that was given by R.H. Whittaker. Come to next point. Let's see, आपने पहला देखा था उसमें क्या था? Monera. So the kingdom includes all the prokaryotes like mycoplasma, bacteria, actinomycetes and cyanobacteria. Right? Class 10th में भी आपने इस चीज को देखा होगा, एंड थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, नए टर्म्स यूज होंगे. सो जो किंगडम प्रोकैरियोट्स थे वो मोनेरा कैटेगरी में आते हैं, और इन्होंने प्रोकैरियोट मोनेरा को फर्दर माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया, इसमें फोर मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. जो मोनेरा होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इसमें जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिमेटिव होते हैं, राइट? बहुत ही एसेंट फॉर्म में होते हैं. द सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट. इसमें क्या होते हैं? जो सेल होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और जो सेल वाल होते हैं जनरली प्रेजेंट होते हैं. जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेकेड डीएनए. इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में कैटेगराइज नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस में डिवीजन कोई नहीं होता है, और नेकेड डीएनए को कंटेन करता है. डीएनए दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड.
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें कोई भी, क्योंकि न्यूक्लियस ही ऑर्गेनाइज नहीं है, डीएनए नेकेड है, तो सिंपल सी बात है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन जो होते हैं एसेक्सुअल होते हैं और रिकम्बिनेशन होता है। फ्लेजला दिस इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट एंड ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड, ये जो होते हैं सिंगल फॉर्म में होते हैं, राइट। इसका जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल मोनेरा का ब्लू ग्रेन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ दैट कैन सर्वाइव इन ऑल द किंगडम ऑफ क्लाइमेट, और आपको पता है कि जो बैक्टीरिया हर क्लाइमेट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ मोनेरा। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी types of monera. So all prokaryotes are in the monera and monera kingdom contain bacteria and archaebacteria, ठीक है। सो जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया और ये है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड दीज आर द जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, राइट। जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और ये अपना भोजन खुद बना सकती है। और आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया है इनका यूज बहुत ज्यादा है ऑन द अर्थ बिकॉज दे आर द डिकम्पोजर, सो दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी व्हाट इज यू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है उसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे कंटेन रिजिड सेल वॉल, इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजेला। जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और इसमें रिजिड सेल वॉल होते हैं जिसका सेल वॉल होता है बहुत ही कठोर होता है। ये यदि मोटाइल है तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा आर द ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बोला था कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है and they are capable to make their own food and helps in photosynthesis process. They contain chlorophyll A and carotenoids. जो यू बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल ए होता है एंड कैरोटोनाइड्स होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यू बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटोनाइड्स। इसके जो सेल वाल होते हैं वो रिजिड होते हैं यानी कठोर होते हैं और यदि मोटाइल के फॉर्म में होगा तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। दे में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिलामेंटस दैट इज द फ्लैट भी हो सकता है एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये तीनों वाटर में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल टू परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिसमें हेटेरोसिस्ट सेल प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, हेल्प करता है, जैसे नॉस्टक एंड एनाबिना। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, राइट। अब है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एटसेट्रा। इनका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड हेल्प इन द रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है और नाइट्रोजन प्रोसेस में हेल्प करती है। जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और ये डिकम्पोजर के जैसे काम करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे पी प्लांट हो गया उसको हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कौन? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सम ऑफ देम आर द पैथोजेनिक एंड कॉजेस डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। आपने देखा होगा, आपको डिजीज पढ़ाया गया था लास्ट क्लास आपने पढ़ा होगा। तो हमने पहले ही बोला कि कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, कुछ जो होते हैं यूजफुल होते हैं। ये बीमारी को उत्पन्न भी करते हैं और बीमारी को खत्म भी करते हैं। तो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो आप समझ ही सकते हो, ऑटो मतलब जो अपना काम स्वयं करे। तो उसमें इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, और केमोसिंथेटिस जो केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया केमिकल के फॉर्मेशन में या केमिकल के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करते हैं उनको केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टेक एंड एनाबेना, राइट। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। और वेस्टिमेंटिफेरा एंड क्लेप्टोजीना, ये क्या है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नए टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसके पहले आपने इसको नहीं सुना होगा। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोट में है, आपको पहले भी पता है। दे आर आल्सो नोन एज पिपिलियो, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पिपिलियो का फुल फॉर्म क्या आता है, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये अक्सर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, या एंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें कभी पूछ ही लेता है। तो इसको याद रखिएगा, पिपिलियो प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें जो होते हैं सेल वॉल नहीं होते हैं और ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होते हैं। और जो इसमें फ्लैजेला का फॉर्म होता है 9+2 के फॉर्म में होता है। यू कैन सी हियर, इसका जो स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा का, ये है लिपोप्रोटीन जो लिपिड से बना हुआ है, राइट। ये जो है लिपोप्रोटीन है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ये है सोलेबल प्रोटीन जो इसमें डिसॉल्व हो सकता है। दीज आर द राइबोसोम्स एंड दिस इज द डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दीज आर द सोलेबल डीएनए सोलेबल आरएनए जो इसमें डिसॉल्व है, किसमें, माइकोप्लाज्मा में। तो सोलेबल प्रोटीन और सोलेबल आरएनए जो होते हैं ये ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं और ये माइकोप्लाज्मा पूरी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है एंड राइबोसोम होते हैं, राइट। ये जो होते हैं सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। इसका जो इसको हम पिपिलियो भी कहते हैं, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है और ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। So today we have discussed about 5 kingdom system of classification was given by R.H. Whitaker in 1969 and these are Monera, Protista, Plantae, Animalia and Fungi. तो today we have discussed about Monera क्योंकि ये बहुत बड़ा किंगडम है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टडी करने में, तो आप लोग भी घबराइएगा मत, प्लीज लिसन इट केयरफुली। थैंक्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।